Lord, you're so लोग तो आ नहीं रहे. you're so faithful. And when I saw this, I said, Lord, you're saying shepherds will come, people are not coming right now. Amen. और जो यहाँ हो रहा है वो यही नहीं है. And what's happening here is not just here. मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोप में लोग इतनी बात कर रहे हैं FLJ के बारे में. I'm telling you, people are talking US about में लोग बात कर रहे हैं FLJ के बारे में. about FLJ in Europe, in US. और जब वो दर्शन मैंने देखा उस मशीन का, मैं समझ गया प्रभु क्या कह रहे हैं. When I saw the vision of that machine, I understood what the Lord is saying. रास्ता बनाना है. That I have to make the way. इस देश आप कभी हम नहीं समझ पाएंगे इसको, ये कितना स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट है जो कैपिटल में हो रहा है. दिल्ली को दिल बोला जाता है. जब दिल इंपैक्ट हो गया तो पूरा शरीर इंपैक्ट होगा. We will not understand how powerful, how significant this is. Delhi is the capital, the heart of the country. When the heart is affected, the entire country shall be affected. और मैं आपको परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ, ये मेरी प्रार्थना है, दिल्ली की हर एक कलीसिया बढ़े. And I'm telling you before the Lord, this is my prayer. Let every church of Delhi grow, क्योंकि expand. भैया इतने करोड़ों लोग हैं, एक चर्च से क्या होगा? Because there are crores of people, one church is not enough. Amen. हर एक कलीसिया बड़े भर जाए आत्माओं से. Every church be filled with souls. Every church be filled with people. Hallelujah. Okay, so quickly मैं ये बताऊंगा, फिर हम लोग प्रार्थना पे जाएंगे. So how to receive an impartation? एक impartation को कैसे ग्रहण करना है? First thing is, remember this, God uses human vessels. पहली बात याद रखें, परमेश्वर मनुष्य रूपी बर्तनों का इस्तेमाल करता है. मगर जो भी हम रिसीव करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जब तक उसको परमेश्वर से ना मिले मनुष्य कुछ ग्रहण नहीं कर सकता. But whatever we receive, John the Baptist said, unless a man receives from God, he can receive nothing. So just impartation is not everything. सिर्फ impartation ही सब कुछ नहीं है. पड़ोसी को बोलो, just impartation is not everything. Tell your neighbor, सिर्फ impartation सब कुछ नहीं है. सही दिल होना बहुत जरूरी है. सही हृदय होना बहुत जरूरी you है. must have a right heart. जूडस को भी परमेश्वर ने वही अधिकार दिया. God gave the same authority to Judas. उसको वही अपोस्टल का ऑफिस दिया, उसको अनॉइंट किया अपोस्टल के ऑफिस के लिए. He was given the same office of apostle and he was anointed for it. इंपार्टेशन मिला उसको. He got the impartation from the Lord. क्या हुआ? What happened? नाश हो. He got destroyed. क्योंकि दिल सही नहीं. Because his heart was not right. कई बारी लोग केवल चाहते हैं बस हाथ रख दो मेरे ऊपर, हाथ रख दो, हाथ रख. Many times people just say, ठीक keep है, your hand. अच्छा है, हाथ रखेंगे, आज सबके ऊपर हाथ रखेंगे. We'll keep our hand on everybody today. मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ऑफ गॉड. But more प्रभु important, मेरे अंदर ना एक शुद्ध मन दे परमेश्वर. but more important is to have a pure heart. Lord, give me a clean heart. प्रभु मेरे उद्देश्यों को प्यूरिफाई द इंटेंट्स ऑफ माय हार्ट लॉर्ड. मेरे दिल के मकसदों को, मेरे उद्देश्यों को पवित्र कर प्रभु. इससे पहले मैं गलत किसी के लिए बोलूं, प्रभु मेरे मुंह पे, दाऊद कहता है मेरे मुंह पे ताला लगा दे प्रभु. Before I would speak evil of someone, Lord, put your guard on my mouth, put your lock on my mouth. अभी रिसेंटली एक पास्टर मेरे एक दोस्त हैं, उनके चर्च को किसी ने रेंट किया और वहाँ पे मीटिंग हो रही थी. Recently, a friend of mine, he's a pastor. Some people rented his church, and there was a meeting there. कुछ पास्टर्स, कुछ लीडर्स थे. Some pastors were there, some leaders. मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया कि चलो पास्टर मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है. My pastor friend did not charge them anything. That it's a pastor's meeting, good thing. फिर उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि वो क्या मीटिंग थी वहाँ पे, क्या बात हो रही थी. And he called and told me what they were discussing. और मीटिंग थी, The meeting was कि अरे आजकल के चर्च में भीड़ बुला लेते हैं. that these churches these days they call crowds. चंगाई चंगाई चंगाई. They talk about healing, healing, healing. और यही जो पास्टर्स हैं रात को शराब पीते हैं. And then they drink at night. कोई बात नहीं, प्रभु देख रहा है सब. I said the Lord is seeing. जब आप उसके लिए जियोगे, When you will live for Him, वो आपके लिए खड़ा होगा. He will stand for you. Amen. और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो ये सब बोल रहे हैं हमारे लिए. The sad thing is not that they are speaking such things मुझे about दुख us. इस बात का है कि प्रभु वो भाई है हमारे, sad और अगर सही हृदय होता तो जो यहाँ उमड़ रहा है वो अभिषेक, वो ग्रेस के पार्टेकर वो भी होते. The sad thing is what is happening here. If their hearts were right, the same grace would be flowing in their life right now.
हालेलुया। So आप पास्टर सामर्ट से, आप मेरी वाइफ से पूछे, आज भी when I meet different men of God who have journeyed, जो मुझसे पहले मैं कभी हल्का नहीं था, मैं कहता नहीं। Even today when I उन्होंने meet, एक लेगेसी वो परमेश्वर साथ चले फिरे. There is a deposit in their life. even today when I meet the men of God, I don't take it lightly. There's a legacy, there's a walk, there's a journey they have done with the Lord. We are not worshiping them. हम उनकी आराधना नहीं कर रहे. There is a difference between honor and worship. आदर और आराधना में बड़ा अंतर होता है. जिसका दिल सही नहीं है ना, वो आदर को worship बोलता है. Those whose hearts are not right, they think honoring means worship. Come on. मैं आपको बता रहा हूँ, आज वो ग्रेस इस जगह अवेलेबल है हर किसी के लिए. Today that grace is available for अगर आप everyone. इस जगह हैं, आप मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं या आप मिनिस्ट्री में हैं, come on, I want you to receive and become a partaker of this grace. If you are in this place, you are in ministry or you want to go into ministry, मैं चाहता हूँ आप इस अनुग्रह के सहभागी हो जाओ. Amen. So, yeah, सबसे पहली चीज मैं आपको क्विकली 4 तरीके से बताऊंगा इम्पार्टेशन पाने के. I'll tell you सबसे पहला है थ्रू एसोसिएशन. 4 ways to receive impartation. पहला है उनके साथ जुड़ करके. राइट. सो हम देखते हैं एलाइशा सर्व्ड एलाइजा. We see एलीशा ने एलिया की सेवा की और वही अभिषेक जो एलाइजा के ऊपर था वो एलाइशा के ऊपर आ गया. and the same anointing that was upon We see the same thing in Elijah Timothy. Timothy served Paul. We see that with Timothy he served Paul. उसने पौलुस की सेवा की. And we saw he carried the legacy. And हमने देखा कि उसने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया. Amen. So it gets transferred through association. तो जुड़ने के द्वारा ये मिलता है या प्राप्त होता है. Like when we spend time together, जब हम साथ में समय बिताते हैं, there is a spiritual rubbing that happens. एक आत्मिक लेन देन हो रहा है, एक डिपॉजिट हो रहा है. Right. So quickly, I'll not waste time. Association. Second is desire. दूसरा है चाहत रखकर. If you desire it, अगर आप चाहत रखोगे you'll become a partaker of it. तो आप उसमें हिस्सेदार बन जाओगे. Okay. Third is through तीसरा. honor, जो मैंने आपको बताया था. आदर के द्वारा, जो मैंने आदर क्या करेगा? What? अगर आप उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं मिल सकते कभी भी, if you can never meet that person, अगर वो किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आप नहीं जा सकते if they live in a place दूर where है, you cannot go, it's और far आप नहीं जा सकते, and you can't go there, परमेश्वर उसको भी बाईपास कर देगा और वो सेम इम्पार्टेशन आपके पास ले आएगा. then God will even bypass that for you and he will bring that impartation to you. Amen. So honor. And fourth is और चौथा, when you sit under the teaching of that person. जब आप उस व्यक्ति के शिक्षा के अधीन बैठो, Because शिक्षा में वो आत्मा है जो उस व्यक्ति के ऊपर है. because that spirit is in the teaching that is upon that person. कितने लोगों ने यहाँ पे ब्रदर उगो की टेस्टिमनी सुनी थी? How many people have heard the बिल्कुल testimony of brother Ugo? उनको मेंटली डीमंस ने ऑप्रेस कर रखा था. उन्होंने एक oppressed. शिक्षा को 211 बार सुना. He was oppressed mentally. He heard one teaching 211 times. क्या हुआ? कंप्लीटली डिलीवर्ड. What happened? He पूरी तरह से आजाद हो गए. अभी मेरी बात एक व्यक्ति से भी जो ऑस्ट्रेलिया में है, I was talking to a man who's in Australia. और जब उन्होंने उनकी वाइफ ने मुझे कॉल किया कि मेरा पति सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने, And वो his रो रही थी. wife one day called and said, my husband has attempted suicide. She was crying. और पता नहीं क्यों मेरे अंदर क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि आप उनको इंडिया भेजिए. I don't know what happened. I said, send him to India. वो इंडिया आए और वो सबसे पहले आके बोलने लगे, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो. And, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा. and when he came, he said, Pastor, can you pray for me? I said, I will not pray for you. मैं आपको वचन सिखाऊंगा. I said, I'll teach you the word. तो बड़े अपसेट हो गए. उन्होंने वाइफ को फोन करके बोला कि अरे ये कहाँ भेज दिया मुझे. He was very upset. He told his wife, where मुझे have तो you लगा sent इनके me? पास तो कोई सामर्थ नहीं है. I don't think this man has any power. और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का कोई पास्टर नहीं छोड़ा था जिसके पास वो नहीं गए थे. And he had not spared any pastor in Australia where he had not gone for prayer. So वो यहाँ आए, उन्हें वचन बताने लगे. He came under the teaching. He came under the same spirit. आप उसी आत्मा के अधीन आ जाते हो. और वो उसी आत्मा के अधीन आ गए जब वो आके शिक्षा सुनने लगे.
आप जानते हैं इट कैन इवन क्रॉस जनरेशन, जैसे बाइबल जॉन द बैप्टिस्ट के लिए कहती है ही वॉज वॉकिंग इन द स्पिरिट एंड पावर ऑफ एलाइजा, वो उसी आत्मा और उसी सामर्थ में चल रहा था जो एलाइजा के ऊपर था। ये कई पीढ़ियों को भी पार कर सकती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा है कि वो एलिया की ताकत में, एलिया की आत्मा में चल रहा था। और ये जो व्यक्ति हैं ये ऊबर ड्राइवर थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, सुसाइडल थे। This man was driving Uber. He was frustrated and suicidal. मेरी 3 दिन पहले उनसे बात हुई। 3 days ago I spoke to him. आज चौथा घर बना रहे हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में। Now he is making his 4th house in Australia. और केवल पैसों में नहीं, ही फैमिली रिस्टोर्ड हो गई, प्रभु में बढ़ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज द सेम anointing that brings breakthrough, he has become a partaker of that. And not just money, his family is growing, अपने परिवार में, अपने जीवन में बढ़ रहे हैं because वो उसी अभिषेक के अधीन आ गए। हम लोग नॉर्वे में गए थे जिस चर्च में मैंने आपको बताया, वो चर्च श्रिंक हो रहा था, सबसे बड़ा चर्च था एक समय में, मगर छोटा होता जा रहा था। और जब हम गए वहां पे पास्टर बोले थे मैं नहीं चाहता कि हमें ये बिल्डिंग छोड़नी पड़े। We were in Norway. We went to the church. It was the biggest church of Norway, but it was shrinking and slowly becoming smaller. And the pastor said, "We don't want to go away from this building." जब भी आप किसी जगह, जब आप भेजे जाते हो किसी असाइनमेंट से, when you are sent, when you are sent to assignment, आप केवल एक व्यक्ति नहीं है जो जा रहा है, you're not just a person. आप उस अभिषेक को लेकर जा रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दिया। You are taking the anointing that God has given to you. और हम लोग वहां पे गए, पहली मीटिंग हुई, वो बहुत पावरफुल थी, उन्होंने दोबारा बुलाया, मीटिंग हुई, और अब वो चर्च ब्रांचेस खोल रहा है और बढ़ रहा है। और we went there for the first time. They called us again. We went again. Now that church is growing and they're opening up branches everywhere. और मैं नेपाल में था और वो पास्टर मिलने आए हमें नेपाल से, और हम नेपाल में उनसे मिले, और वो नेपाल में कह रहे थे पास्टर आई डोंट नो, आपको पता है नहीं पता है, बट यू कैरी अ ब्रेक थ्रू अनॉइंटिंग। And I was in Nepal. He came to meet me in Nepal. He said, Pastor, आप you know or not, but you बिकॉज हमारी कलीसिया में वो ब्रेक थ्रू हम देख रहे हैं जो हमने जब से कलीसिया बनी तब से नहीं देखा। आप ब्रेक थ्रू का अनुग्रह लेके चलते हैं क्यों? Because we are seeing that breakthrough in our church. We have not seen ever since. And that church has started to explode. और वो चर्च कई गुना बढ़ने लग गया है। Amen. I pray that you will receive that breakthrough anointing today. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप वो ब्रेक थ्रू का अभिषेक आज ले लो अपने जीवन में। Amen. So तेल से अभिषेक कहीं के लिए किया जाता था? Why? ऑर्डिनेशन के लिए। यहाँ पे आज कोई ऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, किसी को पास्टर नहीं बना रहे हम। Why? This is not ऑर्डिनेशन। आज किसी को पास्टर नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, कहीं पता चला आप फोटो ले लो, बोलो देखो मेरे को तो पास्टर बना दिया। सो मैं आज बता रहा हूँ ये ऑर्डिनेशन के लिए ले हैंड नहीं हो रहा है। This is not ordination lay hand. ये ले हैंड है। अगर कोई बीमार है If someone तो is पहली sick, चीज, आप जैसे जेम्स 5:14 में पढ़ा था, परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग के द्वारा उस जुए को आज नाश कर देगा। as we read in the book of James, God will destroy that bondage of sickness on your life through His anointing today. एंड दूसरा, Secondly, मैं प्रार्थना करता हूँ I pray कि जैसे will anoint you with oil, as we anoint, जब हम आपका अभिषेक करते हैं तेल से, जो परमेश्वर मैं नहीं, परमेश्वर जो प्रभु देना चाहता है आपको, whatever God wants to give you, गिफ्ट विल बी established in you. वो वरदान आपके जीवन में स्थापित होगा। Amen. How many people are ready for that? कितने लोग तैयार हैं? मैंने आपको क्या बोला, अगर आप कैजुअल तरीके से रहोगे, अरे हाँ ठीक है मैं, तो यू आर गोना मिस इट। I told you if you are casual about it, तो आप गवा देंगे उसको। कितने लोग हैं ऐसे जो दूसरे शहरों में देख रहे हैं ऑनर के साथ, वो वहां पा लेते हैं, वहां खींच लेते हैं, जो कई बारी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं कर पाते। Many people watching us from different cities through honor are able to receive that impartation, which people coming here may not. कोई मुझे बोला था, अरे पास्टर आप बहुत लंबा प्रीच करते हो। मैंने कहा पौलुस जैसा तो नहीं करता, वो बंदा गिर के मर गया रात को, तब भी प्रीच कर रहा था पौलुस। Some people say, Pastor, you preach so long. I said, I'm not preaching like Paul. That guy died. He fell asleep and died. Fell off. और सोचो उसके बाद पौलुस ने कहा चलो जिंदा करते हैं दोबारा दूसरा सेशन। And then imagine Paul said, let's raise him from the dead and let's go for the next session. Amen. एक बार मैसेज आया था मुझे कि आप अगर छोटी सर्विस करते हैं ना तो और बहुत लोग आते हैं। One time I got a message, if you did a smaller service, many more people would have come. मैंने कहा आपको कोई दूसरी कलीसिया देखनी चाहिए। I said, you should look for a different church.
Amen. क्योंकि इस जगह परमेश्वर योद्धाओं को खड़ा कर रहा है. Because God is raising up warriors in this place. आप संडे को हल्का मत जानो. जो हर संडे आप रिसीव कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो विक्टोरियस माइंडसेट आपके अंदर आ गया, आपको पता भी नहीं चला. आपके लंबे जीने का कारण होगा वो. Don't take your Sundays lightly. When you will receive this victorious mindset, it will be the reason for you to live a long life. विक्टिमहुड निकाल देगा परमेश्वर आपके अंदर से. God will pull out every victimhood from you. और वो वॉरियर, एक योद्धा की मेंटालिटी आपके अंदर डाल देगा. And He will give you the mindset of a warrior. आमीन. बाइबल दाऊद के लिए बताती है कि दाऊद के पास जब लोग आए, दाऊद ने बेस्ट लोगों को नहीं, ट्रेंड वॉरियर को नहीं चुना. बाइबल बताती है कौन लोग आए, जिनके ऊपर कर्जा था, सुसाइडल थे, Bible tells us समाज के ठोकर खाए हुए लोग. when people came to David, they were not the best elite warriors. They were people who were defeated in life, people in debt, people suicidal who wanted to kill themselves. और बाइबल क्या बताती है, जब वो दाऊद के साथ रहे, And the Bible tells us when they were with David, बाइबल उनको कहती है माइटी मैन ऑफ डेविड. वो माइटी मैन बन गए. वो दाऊद के महान लोग कहलाए. Mighty men. बहुत सारे माइटी मैन खड़े हो रहे हैं यहाँ पे यीशु के नाम में. Many mighty men are rising up in this place in Jesus' name. आमीन. आप प्लीज खड़े हो जाइए, आइए. Come on, stand in your place. इससे पहले मैं प्रार्थना करूं बीमारों के लिए, और आज हम ज्यादा हीलिंग टेस्टिमनी नहीं लेंगे We will not take many क्योंकि वी हैव healing टू testimonies. प्रे फॉर यू ऑल. आप सबके लिए प्रार्थना करना है. बट एक जेन्युइन हार्ट के साथ थोड़ी देर हम वर्शिप करेंगे. But with a genuine heart, we'll worship for some time. आमीन. हम लोग वर्शिप करें. और इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले संडे बहुत ही स्पेशल संडे होने वाला है. Next Sunday is going to be a very special Sunday. अमेजिंग संडे होने वाला है, It's going to be an amazing Sunday. क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ Because I'm not here. और प्रभु और बड़े काम करेगा. And the Lord will do even mightier works. क्योंकि मेरे जो आत्मिक माता पिता हैं, Because my डॉक्टर सैमुअल पट्टा, पास्टर मेलन पट्टा, वो यहाँ पे होंगे. Because my spiritual parents, Dr. Samuel Patta and Pastor Merlin Patta will be here. आमीन. मैं उनका बहुत आदर करता हूँ. I really honor them. मैं अकेले में उनके साथ मैंने समय को बिताया है. I have spent time with them personally. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो जीवन जी रहा हूँ, जो फल खा रहा हूँ, वो आदर का है. I'm telling you the life that I'm living today, the fruits that I'm eating today is of honor. तो अगले संडे मिस मत करिएगा. So don't miss the next Sunday. एक अपग्रेड परमेश्वर आपकी लाइफ में लेके आ रहा है. God is bringing an upgrade in your life. आमीन. और आप प्रार्थना करेगा. मैं अगले संडे, थर्सडे, फ्राइडे मैं स्वीडन में हूँ यूरोप कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद संडे को मैं नॉर्वे में हूँ, और परमेश्वर महान काम करेगा. And I'm in the Europe conference this coming week and then in Norway, so pray and God will do mighty wonders. आमीन. मगर अगले संडे अकेले नहीं आना है. Don't come alone. किसी और को लेके आना है. Bring someone. पड़ोसी को बोलो अगले संडे अपग्रेड का संडे है, बढ़ोतरी का संडे है. Tell your neighbor it's the Sunday for upgrade, Sunday for increase. Amen. Amen. God has used Dr. Patta as a general in the message of faith in this nation. परमेश्वर ने डॉक्टर पट्टा का इस्तेमाल एक जनरल की तरह किया है इस विश्वास के संदेश में. और जब आप उनसे मिलेंगे, When you'll meet him, he walks with Bishop Oyedepo वो बिशप ओएडेपो के साथ चलते फिरते हैं, and people like that. और उस तरह के लोगों के साथ. So there's already so much that you can draw. तो पहले ही बहुत कुछ है जो आप ले सकते हैं उनसे. Amen. I mean, like Pastor Samad knows it. Recently, I went to meet him in Hyderabad. हाल ही में मैं उनसे मिलने हैदराबाद गया था. Just normal worship. सामान्य आराधना कर. We began to pray. Every time I am with him and we pray, it's like heaven just opens. I mean, like heaven is already open, but understand what I'm saying. It's like this manifest presence of God just fills the room. We were sobbing for hours. I don't know how many hours. We were on our face on the floor. जब कभी उनके साथ मिलता हूँ और जब कभी हम आराधना करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है. हम घंटों तक रो रहे थे, अपने मुंह के बल लेट कर आराधना कर रहे थे, पता नहीं कितने. Because when you meet a man of God, you are also meeting that relationship that they have with God. You are encountering that depth, that nearness
that they have with God. क्योंकि जब आप एक परमेश्वर के जन को मिल रहे हो तो आप उनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उस गहराई का भी साक्षात्कार करते हो. Amen. So जिनका मैं आदर करता हूं उनका आपको और आदर करना है. Those whom I honor, I want you to honor them all the more. Amen. So come with great expectation. तो महान उम्मीदों के साथ आना. Don't come alone. अकेले मत आना. Bring someone else. किसी को लेकर के आना. मैं आज आपको अपनी फाइनेंशियल बताता हूँ. आई एम टेलिंग यू हाउ पावरफुल इम्पार्टेशन इज. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पार्टेशन कितना. मेरे ड्रीम में बिशप पटा है. बिशप पटा came in my dream. अगर मैं आज आपको बताऊंगा प्रभु ने किस किस को भेजा है तो पूरी रात निकल जाएगी. If I tell you who all God has sent in my मगर dream. आज आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल फादर बिशप पटा है. But I'm clearing that my spiritual कई father is लोग Bishop बहुत Pata. कुछ बोल रहे हैं. Because many people are saying many useless things. ओके सो ड्रीम में बहुत प्रभु के बंदे आए मेरे. Many people have come in my dream. ओके सो बिशप पटा मेरे ड्रीम में आया और उन्होंने ड्रीम में आके मेरे को बोला कि कम आई हैव अपग्रेडेड यू टू 5 स्टार. Bishop Pata came in my dream and he said, और मैंने देखा हाँ, मैं एक आपको छोटे upgrade से कर दिया. कमरे में हूँ और वो बिल्कुल मतलब 2 स्टार भी क्या ही बोलूँगा 1 स्टार था. स्टार तो हटा ही दो. मैं एक होटल रूम में हूँ जो छोटा सा कमरा. It's a small room. It's a very मतलब बिल्कुल small ही hotel. खराब से कमरे में मैं हूँ और वो आए उन्होंने कहा सन आई हैव अपग्रेडेड यू टू 5 स्टार. And he came and he said, बेटा मैंने तुम्हें 5-star होटल में अपग्रेड कर दिया. चलो. और मैंने प्रभु को बोला जब मैं उठा मैंने प्रभु से गॉड सेड इट्स एन अपग्रेड फॉर यू. प्रभु ने कहा अपग्रेड है. And the Lord said, ये आपके लिए अपग्रेड है. This is an upgrade. तो मैं आपको बता नहीं सकता. Everything in our life has exploded after that. उसके बाद से हमारी जिंदगी में जिस हद Our से बढ़ोतरी church, हुई है, our finances, हमारी कलीसिया, our हमारा family, पैसा, everything. हमारा परिवार, सब कुछ बढ़ने लगा है. परमेश्वर आज भी मनुष्यों का इस्तेमाल करता है. God uses people even today. ध्यान से सुनो इस बात को आप समझ में Hear आए. this परमेश्वर आज भी मनुष्यों का इस्तेमाल करता है मनुष्यों को ब्लेस करने के लिए और शैतान आज भी मनुष्यों का इस्तेमाल करता है मनुष्यों को डिस्ट्रॉय करने के लिए. God uses people even today to bless people, and the devil uses people even today to destroy people. Amen. और फिर यहाँ पे डॉक्टर बिल विंसन आए थे कलीसिया. Dr. Bill Winston came here. और उस दिन प्रभु ने मुझसे बोला जो लोग मैं तेरे जीवन में भेज रहा हूँ ना वो स्नैपशॉट है तेरे फ्यूचर की. And that day the Lord spoke to me and said, the people that I send in your life are a snapshot of your future. The people God will send in your life will tell you where God is taking you. जो लोग परमेश्वर आपकी जिंदगी में भेजता है वो आपको बताता है कि परमेश्वर आपको कहाँ ले जाने वाला है. They are the snapshot of your future. वो आपके भविष्य की तस्वीर है. Amen. Hallelujah. तो बहुत कुछ करना है इस देश में. So we have to do many things in this तो खड़े nation. हो जाओ फिर. खड़े तो हो ही मगर आत्मिक रीति से खड़े हो जाओ. So be awakened in the spirit. Amen. और मैं आपको एक और can we get the oil? Can we get the oil here? Let's just pray. हम लोग का Hallelujah. कुछ सीखें आज आप. Have you learned anything? So, मैं आपको वो सीक्रेट एक चरवाहा होने के नाते मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसने मुझे ब्लेस किया. As a shepherd, I'm telling you that which has blessed me. Just one is enough. One is enough. Yeah, take this. Yeah, just take this. Just keep 2 bottles. Okay. मैं आपको आज बता रहा हूँ जो आपको बाइबल. ओके. Just hold the mic. Okay. ये मेरे 2 हाथ हैं. These are my 2 hands. क्या अंतर है इन दोनों में? What is the difference? हाँ, एक में तेल लगा है और एक में जिसमें तेल लगा है उसके साथ क्या हो रहा है? हाँ, चमक रहा है. Arise and shine, for your light has come.
ओठ और The प्रकाश oil represents shining. वो तेल जब वो चमक को तेल दर्शाता है। पवित्र आत्मा का आपके ऊपर आता है, you will begin to shine for the glory of God. When the oil of Holy Spirit comes upon you, आप उसकी चमक से चमकने लग जाएंगे। आप चमकोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। You will shine in the name of मैंने Jesus. कहा आप चमकोगे यीशु के नाम में। I said you will shine in the name of Jesus. Arise and shine, for your light has come. उठ और प्रकाशमान हो, तेरा उजाला आ गया अपने है। मुंह को खोलो इस समय। Open your mouth Come on, अपने मुंह को खोलो और Open your परमेश्वर mouth. की आराधना करो इस समय। and worship वो God. अभिषेक आज मौजूद है यहाँ पे। That anointing is वो present ब्रेक थ्रू here. अनॉइंटिंग आज मौजूद है यहाँ पे। That breakthrough anointing अपने is मुंह को present खोलो, here. जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है अन्य भाषा में प्रार्थना करे आज। Open your mouth and pray. Those who can pray in tongues, pray in tongues. The hand of God will come upon you. परमेश्वर का हाथ परमेश्वर तुम्हारे का ऊपर वो आ जाएगा। हाथ आपके ऊपर आएगा। The hand of God will लागा come रबा upon you. गा रबा गादाना, रगादा रबा गादाना मज़े कोठोरो ब्रोगादाना। जब वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। When that anointing comes आप upon you, चमकोगे परमेश्वर की महिमा से। you will shine for the glory ले of God. ब्रोगादाना मरागादाना मज़े कोठोरो बो, लाबा ज़ाकाता। Come on, come on, come on, come on, open your mouth. Worship Him. एक mighty anointing यहाँ पर आ रही है यीशु के नाम में। A mighty anointing is coming in this place. Oh, oh, oh. Sabarala bragadara bragadara badada. Ro bragadara bragadara bragadara. Laga satana mra lagadana mara lagadana ba. Oh, zabala bala ba 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 ba. Come on, receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive करो इस समय जहाँ कहीं हो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। Oh, rabragadana maseko toro broga. Le sabla hadala blaga ba 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 ba. Oh, rabragadala bragadana mara laga trege dele mere lege dele bragadana ma. Oh.